Students, today I will start chapter 13, last unit, organism population, मतलब ecology. In this first chapter is organism and population. So we will start organism and population. Okay. What do you mean by the term ecology? Ecology, it is a branch of biology. Okay, it is a study of interrelationship of living organism with physical and biological environment. ये क्या है? Branch of biology, study of interrelationship of living organism with their physical and biological environment. Who gave this term? This term was given by Ernest Haeckel. In 1869. In 1869. So ecology क्या है? Branch of biology which deals with the study of interrelationship between मतलब living organism और उसके environment में क्या relationship है, हम लोग वो study करते हैं. और ये term अर्नस्ट हैकेल ने दिया था. Now just recall a levels of organization. अगर हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें, स्टार्ट करते हैं यहाँ से. माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स. ओके. cells, tissues, organs. फिर क्या बनेगा? organ system, then it will form organism, population, after population it will form communities. अच्छा, what do you mean by the term population? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़. ठीक है, इस पर सेम स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में बात होती है. पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन विल फॉर्म कम्युनिटीज़, देन कम इकोसिस्टम विल फॉर्म, then different ecosystem will form biomes and it will form biosphere. Okay, so this is the level of organization. So in this chapter what we are studying, we have to study population and organism. Okay, and okay, for what is the here biological hierarchy? ये जो पूरी जो है बायोलॉजिकल हायरार्की है. And this is ecological hierarchy.
And lower level or organization, this is lower level of organization. And higher level of organization, ठीक है. Ecological hierarchy, this is ecological hierarchy, this is biological hierarchy, this is lower level of organization, and this is higher level of organization. Now we will discuss biotic and abiotic factor. Okay, now what are abiotic factor? You are aware of this word. Here we will discuss temperature. We will discuss one by one कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा ऑर्गेनिज्म पे. वाटर, लाइट, सॉइल. ओके, एंड व्हाट आर बायोटिक फैक्टर? प्रीडेशन, और क्या होगा? पैरासिटिज्म, what else? Pathogen and competition. What are pathogen? So parasitism, they can be ectoparasites and endoparasite. A competition may be intra-species competition and interspecies, मतलब सेम स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकता है. ओके, next we will discuss temperature. Okay, first factor we will take effect of temperature. First factor, so temperature, it plays a very important role in enzymatic activity. ठीक है, ऑब्वियसली दिस यू नो कि टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंजाइम्स में. ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या हो जाता है? एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, और जब बहुत कम हो जाता है तब एंजाइम्स विल बिकम इनएक्टिव. कुछ ऐसे टेम्परेचर में क्या होता है, एंजाइम्स बहुत एक्टिव रहते हैं, बट इट कैन रेंज फ्रॉम sub-0 to 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, sub-0 to 50+ डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एंजाइमेटिक, इट इज़ और क्या होता है, कुछ एंजाइम्स जो रहते हैं वो एक्टिव होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में. कुछ एंजाइम्स एक्टिव रहते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज उन एंजाइम्स के, उन ऑर्गेनिजम्स, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर ही एंजाइम्स पाए जाते हैं, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं उनके में एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि एंजाइम्स जो है टॉलरेट हो जाता है हाई टेम्परेचर में, और एंटी फ्रीज की तरह भी वर्क किया जाता है. मतलब उन ऑर्गेनिज्म के पास प्रोटीन ऐसा पाया जाता है
जो कि हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव रहते हैं और एंटी फ्रीज भी नहीं होने देते हैं, विच आर अगेंस्ट फ्रीजिंग, मतलब कम टेम्परेचर में भी वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। दे एक्ट एज अ एंटी फ्रीज, मतलब ऐसा प्रोटीन ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है जो कि एंटी फ्रीज की तरह एक्ट कर रहे हैं एंजाइम के लिए, ठीक है। एंटी मीन्स यू नो, ओके। नाउ कम टू वर्ड यूरीथर्मल। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म यूरीथर्मल? वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर ले, ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट कर ले वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओके। एग्जाम्पल इज ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन, डॉग, cat, they all are eurythermal, wide range of temperature. Next is stenothermal. Stenothermal वो ऑर्गेनिज्म जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहे हैं, नैरो रेंज। फॉर एग्जाम्पल coral you have heard, few insects and few reptiles, okay.